मुझे पढ़ना लिखना है, इल्म की राह पर हमको यूं ही चलना है। I love the educators, I love the educators, I love the educators. Assalamu alaikum, class 8. Hope you are doing well. Today we are going to start unit 2, horses. In this unit we will learn different stories about horses, and we will read today lesson 1, which is Rescue by Rolf Balderwood. Let's read the introduction of this lesson present on page number 28. This story is actually a fictional story. Fiction means it's an imaginary story. The following text comes from a classic Australian novel published in 1888. Dick and Jim Marston are Australian brothers who have travelled to an area far from their home to work with the sheep shearers. So this lesson is taken from an Australian novel, and in this lesson there are two brothers who are travelling towards any area where the people who are working as sheep shearers. Now it's very important here to know what is the meaning of sheep shearer. Actually, sheep shearer means such persons or a man who shears or who cuts the thin layer of wool present on body of a sheep. मीन्स के शीप की बॉडी पर मौजूद बहुत पतला लेयर जो वूल का होता है उसको काटने वाले को कहते हैं शीप शेरर. At the beginning of this story, Mr. Falkland, the owner of sheep station, and his young daughter have set off on horseback. Miss Falkland riding a powerful mare. इस कहानी के आगाज़ में मिस्टर फाकलैंड जो कि एक शीप स्टेशन के ओनर हैं, मालिक हैं, अपनी एक यंग बेटी के साथ निकलते हैं घोड़ों पर सवार हुए सफ़र के लिए, और मिस फाकलैंड इस वक्त सवारी कर रही हैं एक बहुत ही ताकतवर घोड़ी पर. एक्चुअली शीप स्टेशन मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी भेड़ों को रखा जाए. द मेयर इज सडनली फ्राइटन्ड बाय अ फॉलन ब्रांच एंड बॉल्स एट ट्रिमेंडस स्पीड अक्रॉस द प्लेन. मेयर एकदम से डर जाती है गिरती हुई शाख की वजह से और तेज़ भागना शुरू कर देती है पूरे मैदान में. इन इंग्लिश अ क्रीक इज़ एन इनलेट ऑन द कोस्ट. इंग्लिश में क्रीक कहते हैं एक तंग आबी गुजरगाह को जो कि साहिल पर मौजूद होती है. इन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश इन दिस टेक्स्ट अ क्रीक इज़ अ रिवर. और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में इस सब में क्रीक एक नदी है. अननोन टू द ब्रदर्स एट द एज ऑफ द प्लेन इज़ अ क्रीक और रिवर एट द बॉटम ऑफ स्टीप साइडेड gorge. Any horse and rider which went over the edge would be killed. दोनों भाई नावाकिफ हैं कि मैदान के किनारे ढलवान की तरफ घाटी में नीचे एक नदी बहती है, और अगर कोई भी घोड़ा या सवार उसकी जानिब गया तो वो मारा जाएगा. The first person narrator और I of the story is Dick Marston. इस कहानी को बयान करने वाला जिसकी निशानदाही आई के तौर पर की जाएगी यानी कि मैं, वो है डिक मार्स्टन. स्टूडेंट्स, दिस पर्पल बॉक्स इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टू वर्ड्स. वन इज शीप शेरर एंड सेकंड इज शीट्स. द मैन हु शीर्ड द शीप दैट इज कट ऑफ देयर फ्लीसेस और वूल इज कॉल्ड शीप शेरर. Experienced shearer can shear a sheep of its fleece in one piece in minutes, leaving the sheep with just a thin layer of wool without cutting its skin. Shears means cutting implement like large scissors, for example, for shearing sheep, or blades for cutting hedges or grass. Shears takes a plural verb. The shears are over there. सो एक्चुअली ये यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है उन लोगों का जो कि भेड़ों पर मौजूद जो वूल है या फ्लीस है उसको काटते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार इस्तेमाल करते हैं जिनमें कैंचियाँ भी हो सकती हैं, और एक्सपर्ट जो खाल उतारने वाला है भेड़ की वो मिनट्स में उसकी खाल उतार देता है, और वो इस्तेमाल करता है वो ब्लेड्स जो कि हम बाड़ या फिर घास को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं. This is written here. Now we will start the story. This is the main picture present in your textbook on page number 29.
Here in this picture, she is Miss Falkland who is riding the horse. Let's read the paragraph number 1. It seems that this wretch of a mayor had been fidgeting when Mr. Falkland and his daughter started for their ride, but had gone along pretty fairly, for Miss Falkland could ride anything in reason. सफ़र जब मिस्टर फाकलैंड और उनकी बेटी ने सफ़र का आगाज़ किया, तब ही उस घोड़ी की बेसकूनी से के चलने से ये महसूस हो रहा था कि उसकी बदबख्ती आ पहुंची है, लेकिन काफ़ी दूर तक वो सही चलती रही क्योंकि मिस फाकलैंड एक बहुत अच्छी सवार हैं. Then suddenly a dead branch dropped off a tree close to the side of the road. फिर अचानक से एक मुर्दा शाख जो कि रोड के नज़दीक ही किसी दरख्त से आ गिरी. The mare made one wild plunge and reared. अब घोड़ी ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और अपने आगे वाले पाँव हवा में उठा लिए. But Miss Falkland set her splendidly and got the mare's head up. लेकिन मिस फाकलैंड बहुत शानदार तरीके से उस पर सवार रहीं और उस जानवर के सर को संभाले रखा. Nevertheless, the horse went off as hard as she could lay legs to the ground. फिर भी या फिर मगर ये घोड़ी चलती रही और उतना ही मुश्किल था जितना मुश्किल इसको संभालना और इसके पाँव दोबारा ज़मीन पर लेके आना. It was like trying to stop a mail coach going down Mount Victoria with the brake off. ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेल कोच, ये एक ख़ास किस्म की ट्रेन का नाम है जो बहुत तेज़ रफ्तार होती हैं, वो चल रही है एक ट्रैक पर और बगैर ब्रेक के. So what we saw was the wretch of a mare coming along as if the devil was after her. और फिर हमने क्या देखा कि उस घोड़ी की बदबख्ती या बदकिस्मती थी और ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पीछे कोई शैतान है. एंड हेडिंग स्ट्रेट अक्रॉस द प्लेन एट इट्स नैरोएस्ट पार्ट वेयर इट वॉजंट मोर देन हाफ अ माइल वाइड. और वो इतनी तेज़ी से भाग रही थी उस मैदान में और फिर वो पहुंचने वाली थी मैदान के उस हिस्से में जो कि बहुत कम चौड़ाई पर था, तकरीबन सिर्फ 1 मील चौड़ा था. The mare was clean out of her senses and I don't believe anything could have held her. घोड़ी अपने हवासों में नहीं थी और मुझे नहीं लगता था कि कोई भी चीज़ अब उसे पकड़ सकती थी या रोक सकती थी. This is the end of paragraph 1. Inshallah, in next class we will read paragraph 2 and the other paragraphs. Allah Hafiz.